إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تو ہے بندہ خدا کا خدا کی قسم تیرے دل میں خدا کی محبت نہیں
تو مسلمان ہے صرف ہی نام کا، گھر میں قرآن ہے لیکن تلاوت نہیں، آنے والی قیامت سے ڈر بے خبر، تو سمجھتا ہے شاید قیامت نہیں۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب الجلال خالق کائنات مالک کے ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بے مصرف، ناکارہ اور نکما نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے، غلط راستوں سے بچنے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس سارے فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، پردہ نشین خواتین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صحیح اور سچی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آئیے اس مناسبت سے کتاب و سنت کے حوالے نصوص شرعیہ و شرحیہ کی روشنی میں چند منٹ آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری توفیق عنایت بخش، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ خیر و برکت والا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے سروں سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کو پانے کے بعد ہم اور آپ کتنا اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ خود اندازہ لگائیں۔ سلف تھے اس مہینے کے لیے 6 ماہ تک دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ تو ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر فرما، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ جب اس مہینے کو پا جاتے تو خوب عبادت کرتے، دیگر 11 مہینوں میں تو عبادتیں کرتے ہی تھے، لیکن جب اس مہینے کو پا جاتے تو خوب عبادت کرتے، روزہ رکھتے، نماز پڑھتے، قیام کا اہتمام کرتے اور صدقات و خیرات خوب کرتے، اور جب اس مہینے کو پانے کے بعد عبادت کر لیتے تو پھر 6 منتھ تک وہ دعا کرتے، اے اللہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی عبادتیں میں نے کی ہیں، رب العالمین تو اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ تھا ہمارے سلف کا طریقہ۔ ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک مل گیا ہے، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک 6 منتھ سے پہلے تک کوئی کرتا ہے ہمیں سے؟ ہاں، رمضان جب قریب آتا تو سب کو خوشی ہوتی کہ یہ مہینہ میسر ہو جائے۔ سلف کا کیا طریقہ تھا؟ 6 منتھ تک دعا کرتے یہ مہینہ ہمیں مل جائے، اور جب یہ مہینہ مل جاتا عبادت کر لیتے تو پھر دعا کرتے۔ دیکھیے عبادت کرنا اہم چیز نہیں ہے،
इबादत करके उसके लिए कबूलियत की दुआ करना ये बहुत मायने रखती है कि अल्लाह मैंने जो भी नेकी की है, नमाज पढ़ी है, रोजा रखी है, सदका तो खैरात की है, किसी गरीब पुरसाने हाल की मैंने कसम पुरसी की है, अल्लाह तू मेरी इबादत को तू कबूल फरमा, ये बहुत मायने रखती है। तो मेरे भाइयों, यही वो महीना है जिस महीने में रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया। ये महीना तो बजाते खुद बाबरकत है, लेकिन वो किताब जो किताब इस धरती पे सबसे पाक और पवित्र मानी जाती है, कलामुल्लाह, उस किताब को भी रब्बुल आलमीन ने इसी महीने में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। वो रमजानुल मुबारक का ही महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और इसमें हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। मेरे भाइयों, हयात इंसानी की बका के लिए 3 चीजों का बैक वक्त पाया जाना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर उन 3 चीजों में से कोई एक चीज आपको ना मिले तो आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। वो 3 चीज क्या है? आप पानी, हवा, ग़िज़ा। इंसानी जिंदगी में ये तीनों चीज जिंदा रहने के लिए ये तीनों चीज कंपलसरी है, जरूरी है। इन तीनों में से कोई एक चीज आपको ना मिले, आपको खाना ना मिले, पानी और हवा मिले, तो आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से खाना भी मिले, पानी मिले, हवा ना मिले, तब भी आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से आपको हवा भी मिले, ग़िज़ा भी मिले, पानी ना मिले, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरीके से हयात इंसानी की बका के लिए 3 चीजों का बैक वक्त पाया जाना कंपलसरी है, उसी तरीके से इंसानी जिंदगी की कामयाबी और बाइजुल मरामी का महवर और मरकज जो है वो कुरान का इल्म। अगर हम और आप शरई इल्म से नावाकिफ हैं तो हमारी और आपकी जिंदगी बेकार है, फिर सेम कलबहाई में है, जानवरों वाली जिंदगी है। इंसान की बरतरी और इंसान की कामयाबी इल्म में है। किस चीज का इल्म? कुरान और हदीस का इल्म। अगर आप सोसाइटी में तफव्वुक़ और बरतरी, सिविलाइजेशन में आप कामयाबी चाहते हैं तो आपके पास इल्म का होना जरूरी है। और इल्म ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को गैरों से इम्तियाज और गैरों में फर्क करती है। इल्म की बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत है। इसीलिए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने सबसे बेहतर और बढ़िया इंसान वो है जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। मेरे भाइयों, ये रमजानुल मुबारक का महीना, इस महीने में हम कुरान मजीद की बहुत ज्यादा तिलावत करें, उसको पढ़ें, उसकी मानी मफाहिम को समझें, खुद पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, घर वालों को भी पढ़ने का हुक्म दें, क्योंकि इस महीने में कुरान की बहुत बड़ी फजीलत है। हर महीने में फजीलत है, लेकिन जो फजीलत इस महीने में है वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इस महीने में कुरान की एक हर्फ पर 10 नेकियां और 10 नेकी से लेकर 700 गुना नेकियां मिलती हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। और दूसरी रिवायत में है इला 700 ज़ियाफ। जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता है, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने कलाम मजीद की एक हर्फ की तिलावत की, फलहु हसनतुन, उसके लिए एक नेकी है, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, एक का बदला 10। और दूसरी रिवायत में 1 से लेकर 700 गुना उसको नेकी मिलेगी। ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मैं नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है।
تو میرے भाइयों बुजुर्गों नौजवानों, इस माह मुबारक में कुरान मजीद की खूब तिलावत करें। देखिए कुरान और हदीस का जिसके पास इल्म है वो समाज और मुआशरे में उसकी कदर और कीमत बढ़ जाती है। और क्यों ना बढ़े, जिसकी वकार और इज्जत को रब्बुल आलमीन खुद बढ़ाता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों और अहले इल्म के मकाम मर्तबे को बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचिए, जिसके मकाम मर्तबे को खुद रब्बुल आलमीन बढ़ा दे, उसके नसीबे का क्या कहना। हमारा दो चार बड़े लोग हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे देते हैं, इज्जत दे देते हैं, तो वाह वाही लूटने लगते हैं। मेरे भाई, जिसकी अजमत और रिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता, उसके नसीबे का क्या कहना। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले इल्म के मकाम मर्तबे को बढ़ा देता है। कुरान और हदीस के इल्म रखने वाले, कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने वाले के इल्म और के मकाम मर्तबे को बढ़ा देता है। मेरे भाइयों, कुरान ये इल्म की निस्बत, कुत्ता एक नजिस जानवर है। कुत्ता एक नजिस जानवर है। अगर वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा धुलने का हुक्म दिया है, और एक बार मिट्टी से भी। आजकल सरफ साबुन चल रहा है तो 7 मरतबा धुलने का हुक्म है। लेकिन अगर वही कुत्ता कल्बे मुअल्लम है, अगर उसी कुत्ते के जानिब इल्म की निस्बत कर दी जाए, मेरे भाइयों, वो कुत्ता अब सारे कुत्तों में बढ़िया माना जाता है। और इतना ही नहीं, उस कुत्ते का शिकार किया हुआ हलाल हो जाता है, बशर्ते कि वो अपने लिए शिकार ना किया हो। अल्लाह अकबर। एक नजिस जानवर कुत्ता है, उसकी जानिब इल्म की निस्बत कर दी गई, वो कल्बे मुअल्लम हो गया तो सारे कुत्तों में अच्छा हो गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आप अंदाजा लगाओ, अगर इल्म की निस्बत किसी इंसान की जानिब कर दी जाए तो उस इंसान का मकाम और मर्तबा क्या होगा। अल्लाह अकबर। और इतना ही नहीं, कुरान के इल्म रखने वाले का मकाम और मर्तबा क्या है। आइए एक और हदीस से मैं बता देता हूँ। हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सलकल्लाहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। ओ लोगों, जो इल्म के रास्ते पर चलता है, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर निकलता है, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, दर हकीकत वो जन्नत के रास्ते पर चलता है। अल्लाहु अकबर। कुरान और हदीस के इल्म रखने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, जो इल्म के मुतलाशी हैं, किसी रास्ते पर इल्म तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, दर हकीकत वो जन्नत के रास्ते पर निकलते हैं। अल्लाह अकबर। व इन्नल मलाइकता लतज़व्वजु हारिज़न लितालिबिल इल्म। इतना ही नहीं फरमाया मेरे भाइयों, उस तालिब इल्म के लिए, इल्म दीन के रास्ते पर चलने वालों के लिए फरिश्ते अपने पांव को बिछा देते हैं। वयस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, आसमान और जमीन की सारी चीजें उस आलिम दीन के लिए, इल्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। किसी खास बंदे के बारे के लिए नहीं कहा, किसी को मुख्तस नहीं कहा कि फला लोग तालिबे इल्म के लिए दुआ करते हैं। आसमान और जमीन की सारी चीजें उस तालिबे इल्म के लिए दुआ करती हैं। वल्हितानु फी जौफिल मा। ओ लोगों, इतना ही नहीं, समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियां भी उस तालिबे इल्म के लिए दुआ करती हैं। अल्लाहु अकबर। क्या नसीबा है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों। कुरान खुद पढ़ो, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाओ,
अपने घर वालों को भी पढ़ने का हुक्म दो, और इस महीने को जो बाबरकत महीना हमें और आपको मुयस्सर हो गया, इसकी कदर व कीमत करो। न जाने अगले माह मुबारक में हमने से कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा। कुरान मजीद का पढ़ने वाला देखिए एक आदमी की कितनी फजीलत है। आगे के टुकड़े में देखिए, वो फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। ओ लोगों, एक आलिम दीन की फजीलत एक आबिद पर, यहां नुक्ते की चीज है, एक आलिम दीन की फजीलत एक आबिद पर। आबिद के माने होते हैं इबादत गुजार, नेकी करने वाला, अच्छा काम करने वाला। जाहिल नहीं कहा, बेदीन नहीं कहा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मरि लैलतुल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर उसी तरीके से है जिस तरीके से 14वीं चांद की फजीलत सारे सितारों में है। आप 14वीं की चांद हो, आप छत पर चले जाइए, किस तरीके से चकमकाता है वो चांद कि सारे सितारों में सबसे अफजल वो चांद माना जाता है। उसी तरीके से एक आलिम की फजीलत इबादत गुजारों में सबसे बरतर है। अल्लाह वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। और लोगों, दुनियावी जिंदगी में हम और मालो दौलत के वारिस होते हैं, रुपए पैसे के वारिस होते हैं, बंगले और गाड़ियों के वारिस होते हैं। वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। और लोगों, उलमा जो है ये अंबिया के वारिस है। वइन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनार वला दिरहमा। अंबिया जो है रुपए पैसे की विरासत नहीं छोड़े हैं, मालो दौलत गाड़ी और बंगले नहीं छोड़े हैं। इन्नमा वरसुल इल्मा। और लोगों, अंबिया की विरासत जो है वो इल्म है, शरई इल्म, कुरान और हदीस का इल्म। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। और लोगों, जिसने इस इल्म को सीख लिया उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये थी इल्म और अहले इल्म, कुरान और हदीस के पढ़ने और पढ़ाने वाले की फजीलत। हम और आप सोचते हैं कि अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलाएंगे, क्या पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा। मेरे भाइयों, ये हमारी और आपकी गलत फहमी है, गलत सोच है। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से रास्ता करें। जो भी फाउंडेशन आपके करीब मस्जिद मदरसे जो खुले हैं, वहां अपने बच्चों को दीनी तालीम सबसे पहले दिलाएं। कोई नहीं मना करता अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाए, इंजीनियर मत बनाए या प्रोफेसर मत बनाए, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन सबसे पहले जो कंपलसरी और जरूरी है, आपकी जिंदगी में अपने बच्चों की दीनी तालीम दें। अपने बच्चे को दीनी तालीम सिखाएं, उसको मस्जिद और मदरसे में भेजें। कल को पछतावा ना हो। कितनी बड़ी अफसोस होगी मेरे भाई, एक बाप का जनाजा हो, बेटा खड़ा हो, जनाजा चालू हो, बेटे को बच्चे को जनाजे की नमाज ना मालूम। कितनी बड़ी बदनसीबी है। जनाजा है, हमारा जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, लड़का है, बाप का जनाजा है, खड़ा है चुपचाप। मेरे भाई, ये बदनसीबी है कि आपको जनाजे का धुआं ना मालूम हो। कल हम नमाज में जब हाथ उठाते हैं, हमें आपको दुआ ना मालूम हो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा का विर्द आप ना कर सके, अपने वालिदैन के लिए दुआ ना कर सकी। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती। मेरे भाइयों, बिना इल्म के आप तफव्वुक़ बरतरी ताल्लुक़ हासिल नहीं कर सकते। इल्म में कितना पावर है, कितनी ताकत है इल्म में। आइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ ले चलते हैं, आपको पता चल जाएगा इल्म में कितनी ताकत और पावर है। हमारा आप इसकी अहमियत को समझते नहीं है, बस यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे गुजर रही है। सब हालात से हर कोई वाकिफ है। आजकल जो हालात हमारे सामने हैं, हर किसी से मख्फी नहीं है, सबको पता है। मेरे भाइयों, इल्म की अहमियत और फजीलत क्या है, कुरान मजीद के पढ़ने और पढ़ाने वाले का मकाम और इसमें पावर कितना है। आइए ले चलते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, कहा हुदहुद परिंदा कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है।
एक नुक्ता यहां समझ लीजिए, नबी है वो कह रहे हैं कि हुदहुद परिंदा कहां दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि नबी को गैब का इल्म नहीं था। लेकिन हमारे मुस्लिम तबके में कुछ लोगों का आज भी अकीदा है कि नबियों को गैब का इल्म है। मेरे भाइयों, अगर हमें और हमारी और आपकी बात समझ में ना आए तो आइए उस परिंदे की जबान में तौहीद सुने। प्यारे नबी कहते हैं हुदहुद नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर में हुदहुद परिंदा आया, हक तो विमानम तुहित बिही खुबरा। वो हुदहुद परिंदा हजरत सुलेमान से कह रहा है मेरे पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है। देखिए, यहां भी गैब का इल्म जो कहते हैं नबी को गैब का इल्म था, वो परिंदा नफी कर रहा है मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है। जी तुक्का सबब बिनबईन यकीन, मैं अभी सबा से आया हूं एक यकीनी दुरुस्त खबर लेके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं 1500 मील के फासले से अभी तू आ रहा है। मलके सबा जो यमन मारिब में है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस मुल्क शाम में बैठे थे और हुदहुद परिंदा कह रहा है कि मैं सबा जो मारिब यमन में है, सबा से एक खबर लेके आया हूं जो आपको नहीं है। इन्नी वजदतु इमरातन तमलिकुहु, मैंने वहां सबा में मलिके सबा जो थी, मैंने एक औरत को पाया है जो वहां पर हुकूमत कर रही है। तमलिकुहु वलहा अर्शुन अज़ीम, और बहुत शानदार उसके अर्श है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अय्युकुम क़ाला या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। कौन है जो मलिके सबा बिल्कीस के तख्त को, सबा जो मारिब यमन में है, सबा से बैतुल मक़दिस में ले आए। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन्नों ने कहा एक इफरीत, इफरीत मीन्स वेरी स्ट्रांग, एक मजबूत पावरफुल। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, मैं उस तख्त को जो सबा में 1500 हजारों मील के फासले पर है, बैतुल मक़दिस में आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। वइन्नी अलैहि लक़व्वियुन अमीन, और अपनी सिफत भी बयान कर दिया, स्ट्रांग था, मजबूत था, पावरफुल था। कह रहा वइन्नी अलैहि लक़व्वियुन अमीन, कवि के साथ साथ अमानतदार हूं, मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा। सेम टू सेम हूबहू मैं हजारों मील से यहां बैतुल मक़दिस में मैं उसको ले आऊंगा। देखिए, मैटर को लाना ये बहुत बड़ी चीज है। मादी शय को बैद जगह से, यानी सऊदी अरब या किसी भी कंट्री से मादी चीज को लाना ये मुहाल है, नामुमकिन है। हाँ, उसके फोटोज आ सकते हैं लेकिन पूरा मैटर नहीं आ सकता, बिल्डिंग नहीं आ सकती, या सेम टू सेम आदमी चंद मिनटों में नहीं आ सकता। तो इफरीत क्या कह रहा है, मैं सेम टू सेम अर्श को जो मलिके सबा का है, मैं दरबार बर्खास्त होने अंतकुम मिन मकामिक, बैठे हो खड़े होने से पहले मैं ले आऊंगा। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसी मजलिस में एक इल्म वाला बैठा था, उसने कहा अन्ना आती कभी ही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक,
उस अहले इल्म ने कहा कि वो दरबार बर्खास्त होने तक की बात कर रहा है, मैं हजारों मील की दूरी से उस तख्त को चश्म जदन पलक झपकते ही ले आऊंगा, सेम टू सेम हो। अल्लाह अकबर। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, क्या मौजज़ा, क्या करिश्मा है। देखिए, हजारों मील के फासले पर मलके सबा बिल्किस के तख्त को जो मारिब यमन में है, उस अहले इल्म ने कहा अन्ना आपी कभी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक, मैं चश्म जदन पलक झपकते ही वहां से मैं यहां ले आऊंगा। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, पलक झपकते हैं तो देखते हैं है। अल्लाह अकबर। ये मौजज़ा है, ये करिश्मा है। उसके बाद बिल्किस जो मलिके सबा थी, रानी थी जो सबा की, उसको बुलाया जाता है हजरत। और ये भी कहा जाता है, ये इल्म वाला जो कहा जाता है इल्म मिनल किताब, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद थे। ये कौल है। जब ले आया जाता है फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, अर्श हजारों मील की दूरी से बैतुल मक़दिस में आने के बाद बिल्किस रानी को बुलाया जाता है। क़ीला हाकज़ा अर्शुकी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं क्या ये तेरा अर्श है। देखिए, सियासत, सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, पूरी दुनिया के बादशाह थे। वही एक ऐसे नबी हैं जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। यहां सियासत समझिए, क्योंकि रानी और बादशाह का मसला है। क़ीला हाकज़ा अर्शुकी, बिल्किस रानी से कह रहे हैं क्या ये तेरा अर्श है। क़ालत कअन्नहु हुआ, कह रही है गोया कि वही है। देखिए सियासत, देखिए डिप्लोमेसी से पॉलिटिक्स, सियासत देखिए, जबकि उसको मालूम है कि वही है, ये मेरा ही अर्श है, तो कलम किसका, मेरा ही है। लेकिन डिप्लोमेसी से पॉलिटिक्स, वो बादशाह है और ये रानी है, उससे कह रहे क्या ये तेरा अर्श है। वो कह रही है कअन्नहु हुआ, गोया कि वही है। ऐसा नहीं करे कि हाँ वही है, गोया कि वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं आओ, क़ीला लहा दुख़ूल सर्ख, आओ मेरे महल में। यहां इंजीनियरों के लिए देखिए सोचने की चीज है, मेरे महल में दाखिल हो। फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा, मलिके सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल को देखने जाती है। महल के पास पहुंचती है कि महल में दाखिल हो। हसिबतहु लुज्जा, और ये समझ लीजिए जाल ज़ुजाज फौकल माई, वो जो महल था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, वो पानी के ऊपर शीशे का था। पूरा महल जो है शीशे का था, नीचे पानी ऊपर महल, और महल जो है शीशे का था। कहती है जब दाखिल होने जाती है तो अपने कपड़े को ऊपर उठाती है। हम और आप कहीं कीचड़ या पानी होता है तो ऐसे तो निकलते हैं, तो जैसे वो महल में दाखिल होने जाती है, वो सोचती है कि पानी है, जबकि ऐसा नहीं है। हसिबतहु लुज्जा, सिर्फ उसका गुमान है, नीचे पानी है और शीशे का पूरा महल है। एक चीज और मेरी माँ और बहनों आपके लिए पॉइंट की चीज है, देखिए अभी ये मलिका जो है, मलिका सबा बिल्किस, अभी ये ईमान नहीं लाई है, लेकिन पर्दे का देखिए, अल्लाह अकबर। इससे पता चलता है
وہ جب داخل ہونے لگی تو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے ایسے اٹھایا کہ اندر داخل ہو. ابھی وہ ایمان نہیں لائی ہے لیکن پردے کا اہتمام دیکھیے, اس کا کپڑا نیچے ہے. اللہ اکبر. جو اصل دکھائی دیتا ہے وہ ہے نہیں. جو یورپ سے تہذیب و تمدن ہمارے بیچ میں آ رہی ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں کے سماج کو گندا کرنے کے لیے آ رہی ہے. اصل جو بظاہر دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن وہ سماج کو گندا کرنے کا مقصد ہے. وہ غیر مسلم ابھی ایمان نہیں لائی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائی ہے لیکن اس کا پردہ دیکھیے ٹخنے کے نیچے سے ہے. ہمارا اور آپ کے حالات کے ہاں جائزہ لے لیجیے. بیٹھ کر اس میں داخل ہوئی اور ایک چیز یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے, دیکھیے اللہ تعالی نے آپ کو مال و دولت کی فراوانی دی ہے, آپ کو بہت روپے پیسے دیے ہیں تو آپ اچھے سے اچھے محل بنوا سکتے ہیں, عالیشان بنگلے میں آپ رہ سکتے ہیں, آپ نوکر چاکر بھی رکھیے, اچھی گاڑی بھی رکھیے, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا محل جو ہے ایسا محل بنائے ہیں کہ صرف ہم گمان کر سکتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے. نیچے پانی ہے, اوپر شیشے کا محل ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت قوت دولت دی ہے تو آپ عالیشان بنگلے میں رہیے, اچھی گاڑی سے چلیے, اچھا کھائیے, اچھا پہنیے, لیکن دھیان رہے میرے بھائیوں اللہ کو مت بھولیے. آپ دنیاوی عیش و عشرت والی زندگی گزاریے لیکن رب العالمین کو مت بھولیے, کیونکہ ہمارا ہدف اور مقصد جو ہے زندگی گزارنے کا وہ عبادت ہے صرف اس رب کی جس نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا نغمہ دیا, نغمہ سنایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں لیکن اللہ کو مت بھولیے. اور اس ماہ مبارک میں خصوصاً آپ صدقات و خیرات کا اہتمام کیجیے. زکات جو نکالنی ہے تو واجبی چیز ہے, اس سے ہٹ کر کے صدقات و خیرات کا اہتمام کیجیے. روزے کا اہتمام کیجیے, غریبوں, بیواؤں, یتیموں کی کسپوسی کیجیے, ان کی دیکھ بھال کیجیے. اور ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں, شہروں میں میرے بھائیوں سحری کا جو اہتمام ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. 1 بجے 2 بجے کھانے کھا کے سو جائیں گے. میرے بھائیوں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی حدیث ہے, تسحروا فإن فی السحور برکہ. پہلی چیز تو سحری کرنے کا حکم دیا, اور دوسری روایت میں ہے وأخروا السحور. سحری جو ہے یہ اخیر وقت میں کیا جاتا ہے, اذان سے چند منٹ پہلے. ہم اور آپ 1 بجے 2 بجے کھا پی کے سو جاتے ہیں, فجر تو گلے ہے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. میرے امت کے لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں گے. بہت لوگ افطار میں احتیاط نہیں ہے, احتیاط اسلام میں نہیں ہے. جہاں گنجائش ہے وہاں بیان کر دیا گیا ہے, لیکن جہاں عجل الفطرہ کا حکم ہے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا, کسی کے کہنے اور اذان کا انتظار مت کیجیے. عجل الفطرہ, افطار میں جلدی کیجیے اور سحری میں تاخیر کیجیے, اخیر وقت میں سحری کیا کیجیے. میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, اس ماہ مبارک میں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا, یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جس میں اسی مہینے کی اسی رات میں اللہ رب العالمین نے انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو ہم نے قدر کی رات میں اتارا. اللہ اکبر. وہ قدر کی رات کی اہمیت و فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. الف شہر کہا گیا,
1000 महीना 83 साल 4 महीने 10 दिन का होता है। उस रात की इबादत जो है, उस कुरान के नुज़ूल होने की वजह से, जिस कुरान की अफजलियत और बरतरियत मैंने शुरू में बता दी है, उस कुरान के नुज़ूल होने की वजह से उस रात की इबादत मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों 83 साल 4 महीने 10 दिन की है। अब हम में से कौन है जो इतने दिन तक जिंदा रहेगा? नहीं रह सकते, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान मजीद को खूब पढ़िए, खुद पढ़िए, मानी मफाहिम को समझ के पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, घर वालों को पढ़ने की तालीम तलकीन कीजिए, दोस्त अहबाब को पढ़ने की तलकीन कीजिए। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में हदीस बयान कर दिया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर और बढ़िया इंसान वही है जो कुरान मजीद को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। और इसी माह मुबारक में हमें और आपको अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात, अल्लाह के रास्ते में खर्च खूब करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, रजुल आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार, व रजुल आताहुल्लाहु मालन फहुव युनफ़िक़ुहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, हसद जायज नहीं है। 2 आदमी काबिल रश्क है, लेकिन 2 चीजों में अगर हसद किया जाए तो जायज है। एक चीज यहां समझा देता हूं, बहुतों लोगों ने बयान किया होगा, हसद और रश्क दोनों में फर्क है। हसद कहते हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, 2 चीजों में हसद जायज है। हसद कहते हैं, मेरे पास मालो दौलत है, मैं ये सोचूं कि मेरे भाई के पास इतना मालो दौलत ना आए, या मेरे भाई के पास ज्यादा है मेरे पास कम है, तो मैं ये सोचूं मेरे भाई का माल खत्म हो जाए। इसको कहते हैं हसद। मेरे भाई के पास मालो दौलत है और मैं ये दुआ करूं, अल्लाह जो इल्म दौलत मालो दौलत मेरे भाई को तूने अता की है, अता किया है, अल्लाह तू मुझे भी अता कर। ये जायज है, इस्लाम में ये जायज है। ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, रजुल आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने शरई इल्म, कुरान और हदीस का इल्म दिया हो, वो दिनों रात दीन के रास्ते दीनी तालीम देता रहे, सीखता रहे, सिखलाता रहे। वरजुल आताहुल्लाहु मालन फहुव युनफ़िक़ुहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, और वो देखिए मालो दौलत से नवाजा है, फहुव युनफ़िक़ुहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, वो रातों दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे। तो 2 चीजों में हसद जायज है, बाकी चीजों में हसद जायज नहीं है। हसद बता भी दिया हूं कि किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये बाबरकत महीना, इसमें बढ़ चढ़ कर हम सदक़ात व खैरात करें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा था, या बिलाल अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक वला तख़्श मिन दिल अर्शि इक़लाला। ऐ बिलाल, तुमको जो माल दिया गया है उस माल को तुम खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में तुम उस माल को खर्च करो। वला तख़्श मिन दिल अर्शि इक़लाला, माल में कमी हो जाने का खौफ मत खाओ। तो इस माह मुबारक में हम सदक़ात व खैरात, जहां रोजे नमाज क़याम का एहतमाम करें, वहीं सदक़ात व खैरात का एहतमाम करें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की एक नेकी को 10 से 700 गुना या उससे ज्यादा भी अता फरमाता है। इसी तरीके से 1 रुपया अगर आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला 1 का बदला 10 से 700 उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला देगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों,
इस माह मुबारक को हमने जो बहुत ही आसानी से पा लिया है, इसकी कदर कीमत को समझ लें, इसका एहतमाम कर लें, नमाजों तराबियों का एहतमाम कर लें, सदक़ात खैरात कर लें, जो भी टूटी फूटी छोटी मोटी नेकियां करें उसको हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह हमने जो भी इबादत की है, रोजा रखे हैं, नमाज पढ़े हैं, तो उसको कबूल कर, और लोगों को जितने भी दिन बाकी हैं उनको अपनी तरफ बुलाइए। इब्तिदाई अशरे में तो खूब जोश रहता है नेकी करने का कि रमजान मुबारक का महीना मिला है, खूब नेकियां करने। जैसे धीरे धीरे माह मुबारक रमजान मुबारक का महीना खत्म होता है, दूसरा अशरा आखिरी अशरा, उस तरीके से हमारा जोश और जज्बा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होने देना है। इस महीने की खैर और बरकत को समझते हुए हमें खूब खूब नेकियां करनी है। इसके इस महीने की खैर और बरकत से खूब मुस्तफीद होना है, दूसरों को भी तरगीब देना है, अपने दोस्त यार को भी हर नेक काम करने की तलकीन करनी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अब आखिर में दुआ गो हूं कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को इस माह मुबारक में खूब खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें से जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो गरीब है उनकी गुर्बत को दूर अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। अल्लाह इस माह मुबारक के सयाम क़याम और जो भी इबादतें हैं इसके एहतमाम की तो तौफीक दे। अल्लाह हमने से जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्र में जो अजाब हो रहे हो, मौला करीम की उनके अजाब को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।